So I believe you must be listening to me. Am I audible? Am I audible? Okay. So as you know that in continuation with the bash programming, we have come to the point where we have to discuss functions and arrays. So let us start with functions first. How do we define the function? So here one way of defining the function is written. You can see here we can start with the function keyword, and then you have to write the function name. Then you have to make the body of that function, and that we do in the same way as we do in case of C or C++. So we have to write the statements which are the part of function between open and closing curly braces. Another way which I prefer to use actually is directly defining the function without making use of function keyword. So this is another way where we can directly write, and since we are accustomed of starting the function definition with the function name itself without writing the function keyword, so we prefer to write the function in this way. So we can write function, and then again you have to make the body of this function. One thing which clearly is required to be understand, that whenever you write any program, the function should always be preceded with the actual main program. So when you write any main program, so before that it is needed that you must include the function. See, you know that in case of we are knowing that we are having the function prototype of concept, so that lets you the flexibility of writing the function anywhere. I mean, even if you are writing it after the main, when you compile the program and when the call of that function is encountered, the compiler understands that the function must be written somewhere. Why? Because it is simply checking the syntax of that call against the function prototype that we have given in the beginning. So since that is a preprocessor directive, so it is letting the compiler know that it may have to encounter somewhere a function call which takes this kind of input as argument and generates this kind of output. So that is already known, and more than that is not expected from the compiler, because the rest of the job is left to the linker, that it has to link the function definition with this call. So this flexibility of including the function prototype in the beginning provides you the option of calling the function, and normally we write the function definition after the main program, but here this concept is not there. So obviously you have to have the function before the main program. आपको main से पहले लिखना पड़ेगा, so that जब हम main पे आए तो वहां तक आने से पहले function की definition जो है वो already interpret हो चुकी हो, उस shell को मालूम हो। ठीक है। दूसरा एक तरीका ये भी है इसमें, मतलब एक चीज और भी जानने वाली है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि व्हेन वी कॉल दैट फंक्शन, वी कॉल अ फंक्शन विद मल्टीपल वैल्यूज। जैसे एक फंक्शन आपने कोई बनाया, से सपोज आई एम राइटिंग अ फैक्टोरियल फंक्शन, और एक सिंगल हमने इंटीजर के लिए वो फंक्शन बनाया है, तो वी सप्लाई एज इनपुट वन इंटीजर, एंड इन रिस्पॉन्स दिस फैक्ट फंक्शन इज जनरेटिंग फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर ए दैट यू हैव सप्लाइड। तो यहाँ पे जो इनपुट है आप यहाँ ऐसे देते हैं, वेयर एज इन केस ऑफ दिस फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके बाद जो इनपुट हम देते हैं वो सीधे डिस्क्रीटली देते हैं बाय जस्ट प्रोवाइडिंग ब्लैंक स्पेसेस इन बिटवीन। जैसे कि हम रीड स्टेटमेंट में वी आर प्रोवाइडिंग द इनपुट, लेट अस सपोज वी आर राइटिंग रीड ए बी सी। So when we run that program, so upon execution of read, we are supposed to input 11, 12, 13, where 11 corresponds to A, then 12 for B, and 13 for C. So in the same way here too, we are giving the function name and the values which we specify. Another concept, another thing which is notable in this case, कि we do not supply any variable in the bracket which have to hold the values which we are passing on the function call. जैसे कि नॉर्मली होता है कि हम जावा या सी या सी प्लस प्लस में क्या करते हैं कि जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उनकी वैल्यूज को सप्लाई करते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन में अगर हम 3 वैल्यूज यहाँ पास कर रहे हैं तो फंक्शन डेफिनेशन में इट इज मैंडेटरी टू हैव 3 वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू 3 वैल्यूज दैट यू हैव पास्ड ऑन द फंक्शन कॉल। तो फंक्शन डेफिनेशन में वी आर हैविंग द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, and there is one-to-one correspondence between actual and formal arguments. Actual arguments means जो function call पे हमने values दी हैं, और formal arguments means जो हमने variables use किए हैं function की definition में।
तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होती है कि अगर पहला हमारा वहां पे इंटीजर है तो आई शुड हैव वन वेरिएबल एज इंटीजर, देन अगर सेकंड वाला जो है फ्लोट है, लेट अस सपोज इट इज 4.5, तो यहाँ पे उसको होल्ड करने के लिए वी आर डिफाइनिंग दिस एज ए फ्लोट टाइप, ठीक है। तो वो और उसके बाद तीसरा अगर हमारी स्ट्रिंग है तो उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे हम एक कैरेक्टर एरे देंगे। तो ये आप 1 to 1 करस्पॉन्डेंस रखते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो जो हम फंक्शन जो है फंक्शन कॉल के समय में सप्लाई करते हैं वैल्यूज, वो इनसाइड द फंक्शन वी एक्सेस विद द यूज ऑफ positional variables like $1, $2, $3. So if 4 values we are passing upon function call, so inside the function definition we can access those 4 values with $1, $2, $3 and $4. इससे उनको कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, बट आई एम श्योर कि एक बार अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो दैट विल बी क्लियर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो रिटर्न वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिटर्न वैल्यू में हम रिटर्न एंड सम वैल्यू वी आर रिटर्निंग, लेकिन यहाँ पे आप जब फंक्शन कॉल करते हैं तो वी डू नॉट राइट एनी वेरिएबल इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट हैज टू होल्ड द रिटर्न वैल्यू। तो क्वेश्चन राइज होता है कि फिर वो रिटर्न वैल्यू हम एक्सेस कैसे करेंगे इनसाइड द मेन। तो उसको एक्सेस करने के लिए वी हैव टू सी द रिटर्न स्टेटस ऑफ दैट फंक्शन। तो उसका जो रिटर्न स्टेटस है वो $? से एक्सेस होगा, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट वे है टू हैव द एक्सेस ऑफ रिटर्न वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इंस्टेड ऑफ हैविंग द एक्सप्लिसिट mention of any variable in the left hand side that has to catch the value returned by that function। तो ये थोड़ा सा फंक्शन की उसमें क्लियर भी हो जाएगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल है यहाँ पे मेन प्रोग्राम का कि इसमें ये फंक्शन डेफिनेशन है माई फंक्शन नाम की, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉल कर रहे हैं मींस यहाँ से आपका मेन है, इससे पहले ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन है। तो दूसरा ये जो है जब आप इसको कॉल करेंगे तो यू आर नॉट मेंशनिंग एनी ब्रेस और एनीथिंग, ठीक है। वो डायरेक्ट आपने फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ब्रेसेस लिखने का इसलिए भी कोई औचित्य नहीं है कि ब्रेसेस तो हम तब लिखते हैं व्हेन वी आर हैविंग सर्टेन वैल्यूज टू बी पास टू द फंक्शन एंड वी आर हैविंग दैट काइंड ऑफ सिंटैक्स, but that kind of syntax unfortunately we do not have। It may be possible that my function को you are supplying 4 and 5 two values, so inside the my function you have to access these values with the help of $1 and $2। तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हम कोई वेरिएबल यहाँ पे प्रोग्राम में लिखते हैं, लेट अस सपोज दैट वेरिएबल इज a, तो उसको हम a को अगर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट यूज करते हैं तो इट इज एक्सेस इन द सेम मैनर एज वी डू इन अदर लैंग्वेजेस, कि ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है, नोन टू दैट फंक्शन आल्सो। और यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर सीधे उसको बिना एक्सप्लिसिट डिक्लेयर करे यूज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपने उसके बाद ये कहीं ऐसे नहीं लिख दिया डिक्लेयर a, या आप लिख देते हैं लोकल a। अगर आप लिखते हैं डिक्लेयर a या लोकल a तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो ये जो a वेरिएबल है दैट हैज बिकम लोकल, ठीक है, ये लोकल हो गया। तो अब ये जो है दिस a कॉपी ऑफ दिस a इज डिफरेंट देन द a वेरिएबल व्हिच वी आर यूजिंग इन द मेन प्रोग्राम। तो अदरवाइज अगर आप इसको रीडिक्लेयर नहीं करते, अगर इसको लोकल नहीं करते या डिक्लेयर नहीं करते, तो ये जो है ये ग्लोबली रहेगा। जो आपने मेन में यूज किया है उसको डायरेक्टली आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। So I think now it's time we can see how we can make use of these functions। So यहाँ पे जो caution में रेड कलर में लिखा हुआ है that you can read out कि the function only works if it is declared before your main routine। The interpreter will return an error if you have declared your function after your main routine, ठीक है। तो वो that is mandatory that you have to supply the function definition before the main function। तो इसीलिए जो कन्वेंशन हम लोगों ने सी या जावा या इन सब में स्टार्ट किया है कि जावा में तो खैर ऐसा हम नहीं करते क्योंकि वहाँ पे तो क्लासेस ही लिखते हैं, लेकिन सी के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे हम फंक्शन की डेफिनेशन वी प्रेफर टू राइट आफ्टर मेन बिकॉज वी आर हैविंग द प्रोटोटाइप कंसेप्ट। तो आप फंक्शन प्रोटोटाइप को यूज करके पहले से ही ये बता देते हैं कंपाइलर को कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दैट फंक्शन, व्हाट इनपुट्स इट इज टेकिंग एंड व्हाट आउटपुट इज जनरेटिंग, ठीक है। सो ये फंक्शन के बारे में है। विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिस प्रोग्राम आई हैव रिटन जिसमें हमने एक इनपुट नाम का फंक्शन लिखा है, और ये जो while true है दिस विल बिकम अ इनफाइनाइट लूप। यस्टरडे somebody was asking कि इनफाइनाइट लूप को टर्मिनेट कैसे करेंगे, आई सपोज विशाल ने पूछा था। तो आप कंट्रोल सी से जैसे हम लोग करते हैं वैसे उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किल भी यूज कर सकते हैं
कि अगर आपको उस प्रोग्राम का PID मालूम हो जाए तो आप फिर किल -9 और उसकी PID देंगे तो इट इज श्योर शॉट कि वो किल हो जाएगा, भले वो कंट्रोल सी से ना रुक रहा हो लेकिन आपका किल से तो जरूरी किल हो जाएगा। तो कोई भी प्रोसेस हम किल कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग किल कमांड, provided you have the information about the PID of that process। ठीक है, तो ये एक infinite loop है, it's a menu driven program और it is letting you to come out of that menu only when you are giving a non valid value, तभी ये आपको उसके बाहर लाएगा राउंड चॉइस पे, अदरवाइज ये कंटिन्यूड रहेगा। और यस, हाँ यस, इसमें चॉइस भी वी आर गिविंग, तो चॉइस जो है वो यस और नो में हम दे रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज यू कीप गिविंग यस 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 यस, इट कीप एग्जीक्यूटिंग एंड द मोमेंट व्हेन वी गिव नो देन ओनली इट इज टर्मिनेटेड। तो ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें एक फंक्शन लिखा है इनपुट्स के नाम का, जिसमें हमने 2 इनपुट जो है रीड करने के लिए फंक्शन लिखा है। लेकिन इस आई एम श्योर ये एक तरीका जस्ट टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट फंक्शन, अदरवाइज हम इससे और अच्छे प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं एंड आई विल शो दैट प्रोग्राम आल्सो। ठीक है, सो मूविंग बैक टू द एग्जीक्यूशन साइट। अब इसमें जो प्रोग्राम्स हैं उसमें वन इज आई सपोज इज F11। ठीक है, तो आई एम जस्ट ओपनिंग दैट फाइल। तो वही जो प्रोग्राम आपको वहाँ स्लाइड पे दिखाया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन एक हमने लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में, सो दैट अगर आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम लोगों ने मेटा कैरेक्टर्स पढ़े थे कि व्हेन वी राइट एनीथिंग इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, so that means any value out of those values which you have specified inside the square bracket। तो जब हम लिखते हैं A and capital A, तो that means either A or capital A। Similarly B और capital B में से either B or capital B। So that in fact is giving a choice to the executor that whether he is giving the choices in capital or he is giving the choices in small। So when we write inside the square bracket, when we write A-Z, तो इसका मतलब ये होता है कि any alphabet starting from A to Z, कोई भी एक alphabet चुन लिया जाएगा। So not necessary that you have to explicitly mention all the alphabets out of which you wish to make the selection of one। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आप रेंज भी दे सकते हैं उसके अंदर और उसमें से कोई एक जो अल्फाबेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको निगेट करना चाहते हैं कि नॉट एनी अल्फाबेट बिटवीन A to Z, तो आप A to Z लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शुरुआत में ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। दैट मींस यू आर निगेटिंग द सिलेक्शन ऑफ एनी अल्फाबेट बिटवीन A to Z। तो इसलिए उसमें से कोई भी अगर A B C D कुछ भी जो है इसका मतलब सेलेक्ट नहीं होना है, अदर देन A to Z जो है सेलेक्ट होना है। तो मे बी if you are giving the range small a to dash small z, that means capital A जो है is admissible, capital B is admissible, तो ये आ जाता है। तो निगेट भी हम कर सकते हैं। तो ये एक मेटा कैरेक्टर है और यहाँ पे जो हमने चॉइसेस दी हैं तो स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है और देख रहे हैं आपकी जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो वी आर नॉट सप्लाइंग एनी वैल्यू, कोई वैल्यू उसको सप्लाई नहीं कर रहे हैं, सीधे वो फंक्शन कॉल हो जा रही है। अगर मुझे वैल्यू सप्लाई करनी होती तो मैं इसी के आगे कहीं पे ये लिखता 12 या 13। ठीक है, और उस केस में यहाँ पे उन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैंने यहाँ पे $1 और $2 को यूज किया होता। सो विल सी दैट एग्जांपल आल्सो कि कैसे उसको हम कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस प्रोग्राम एंड रनिंग इट। So let us suppose we are choosing A. So the first integer is 11, the second is 12, and the answer is 23. Then again it is asking you to enter the choice. So we may say yes. So again we are getting, and here for multiplication, let us suppose we are giving 13 and we are giving 10. Oh, sorry. Yes, and suppose multiplication to C we have to choose, and then 13 and then 10.
So we are getting the answer, and when we say no, so we are coming out of it. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जस्ट टू शो यू कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज मैंने शायद आपको पहले बताई थी, वी हैव ए वेरी पावरफुल कमांड, एंड दैट कमांड इज एक्चुअली BC कमांड। ठीक है, सो अगला जो एग्जांपल है उसमें दैट कमांड विल बी एनकाउंटर्ड, तो मैं वहीं पे आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट अस सी व्हाट प्रोग्राम आई हैव रिटन इन। नेक्स्ट इज फंक्शन कन्वर्जन F12। ठीक है, तो gedit, दिस इज F12 अंडरस्कोर funconv.sh। So इस प्रोग्राम में when we come to the beginning side, you can see that here I have written a function with the name binary. So that basically that function is written to generate a binary equivalent of any decimal। यहाँ पे ये जो ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो what we are doing basically, we are executing this command echo o base to $1 BC। तो BC एक कमांड है जिसको हम यूज करते हैं। इसके अलग अलग सिंटैक्स हैं, एक तो है BC and 3 times lesser than sign, and then we specify the parameters like o base। तो मैं इसको सीधे आपको पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके दिखा देता हूँ एज ए कमांड। तो ओ बेस जो है बेसिकली आउटपुट बेस है। तो हम जब स्पेसिफाई करते हैं ओ बेस इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट, दैट शुड बी बाइनरी। सो ओ बेस इज आउटपुट बेस नंबर, तो आउटपुट बेस नंबर इज 2 क्योंकि बाइनरी का बेस नंबर 2 है। देन सेमी कोलन एंड देन $1, मतलब ये तो उस फंक्शन के अंदर था जहां पे हम वैल्यू सप्लाई कर रहे थे, बट हियर इन दिस केस लेट अस सपोज दैट नंबर व्हिच वी विश टू टेस्ट फॉर कन्वर्जन इज 10। So 1010 outcome we have got, and this is the binary equivalent of decimal 10। तो आप अगर कोई बेस स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इनपुट बेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये यहाँ पे जो है डेसिमल का जो है बेस लेगा। एक चीज में ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप यहाँ पे इनपुट बेस लिखते हैं, जैसे सपोज कोई मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताऊं कि जहाँ पे वी हैव टू आउटपुट बेस आपका 16 है एंड आई बेस इज इक्वल टू 2, और उसके बाद देन यू आर हैविंग सेमी कोलन एंड लेट अस सपोज दैट नंबर व्हिच यू विश टू चेक is 1010। So we have got alphabet A, and that truly has been converted, reason being कि output base we have specified as hexadecimal and input base we have specified as 2। ठीक है, तो हम बाइनरी का इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट किस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर दिया 1010, दैट इज द नंबर दैट हैज टू बी कन्वर्टेड टू द हेक्साडेसिमल। So 1010 is in binary, so you know that we are in hexadecimal to in binary to hexadecimal conversion, we are pairing in the group of 4 from the right side। ठीक है, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है या बिट है उस साइड से हम प्रोसीड करते हैं। तो वी हैव टेकन द कॉम्बिनेशन 1010, so that corresponds to 10, and since in hexadecimal we are having the convention of writing 10 as capital A, so we are getting capital A। So any base to base you can convert। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आई बेस यू डोंट स्पेसिफाई इन द बिगिनिंग। जैसे आप आउटपुट बेस पहले लिखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ बेस इज इक्वल टू 16, आई बेस इज इक्वल टू 2। अगर हम आई बेस को पहले लिखते हैं तो कुछ यूनिक्स या लाइनक्स के वर्जन में ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि आप जो कुछ भी आप देंगे वो बाइनरी में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ओ बेस भी जो आप 16 देते हैं उसको भी फिर बाइनरी में स्पेसिफाई करना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि पहले आप ओ बेस लिखें, क्योंकि हम बेसिस को बेसिकली डेसिमल में आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे 2 बाइनरी के लिए, ठीक है, 8 ऑक्टल के लिए, 16 हेक्साडेसिमल के लिए, तो हम उसी को रखें, और 10 जो है डेसिमल के लिए। तो ओ बेस इज इक्वल टू 16 हम ये पहले स्पेसिफाई करें। और ये कमांड यहाँ तक ही कन्फाइंड नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं कि
by and large, all the operations which we have till now understood through arithmetic operators, they are by default integer. I mean, if when you write 10 divided by 3, so you get quotient as 3 only. You are not getting 3 point something. But here it is possible that you can do the real time calculation, real number calculation, and for that purpose we are having a parameter called scale. So how many up to how many digits after decimal point we are expecting. So I'm just specifying 2, and then I'm writing 10 divided by 3, and then closing this with double inverted comma and then pipeline symbol and BC. So now you can see that it's coming out to be 3.33. So this kind of commands we can use when we have to do the calculation. Basically, that has to support the floating point or real numbers. So we have to make use of BC. BC actually is a very strong command, not only confined to the numeric operations but also includes the string operations. So we'll discuss it in detail later on, but आप इसको इतना तो समझ ही गए हैं कि it's very strong for conversion purpose. So the function which I have written is basically based on this, where I am doing the calculation with the use of BC command. तो अगर अभी कभी आपको जैसे मैं suppose if I am asking you to write a program that has to check whether the given number is even number or not. So you know that in case of even number, if we are having even number of ones in the binary equivalent of any number, then we say it's a even number. So let us suppose if I am giving 10, so that is the even number. Reason being the binary equivalent of 10 is 1010, and if you count the total number of ones, so we are getting only 2. That is a even number. So we say it's a even number. So this kind of when this kind of question you have to solve, so you know that you don't need to write the lengthy syntax for conversion of number from decimal to binary. That can easily be done with a single command, that is BC command. So you can generate this number and you can hold that number in fact in some variable, like you can write k is equal to, and you know that we are having this facility that we can embed the command output in any variable. So we can write here k is equal to, and then we can make use of this command substitution meta character. So whatever outcome we have got in k, that we can check 0.33. So come back to again to the program that we were discussing. तो आप यहाँ पे देखें कि ये तो क्लियर है कि यहाँ पे वी आर कन्वर्टिंग अ नंबर इनटू बाइनरी, and this information I am simply writing just to make you understand the difference between the variable which is global और local. अगर आप local variable रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे केवल एक चेकिंग के लिए कर रखा है कि आपने चॉइस यहाँ मेन प्रोग्राम में दी है and that you are holding in OP variable, तो केवल मतलब इसका कोई यूज नहीं है इस फंक्शन के अंदर, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं डिक्लेयर ओपी से, या ऑल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो राइट लोकल ओपी, तो इसका मतलब है कि आपने ओपी को डिक्लेयर कर दिया कि इट इज नाउ लोकल टू बिन फंक्शन. तो इफ यू आर असाइनिंग एनी वैल्यू टू ओपी, सो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इनसाइड द बिन फंक्शन ओनली, मतलब इसका स्कोप जो है वो लोकल हो गया. सो इसका कोई लॉजिक जो है इस डेफिनेशन में कहीं नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि हम वेरिएबल्स को लोकल कैसे बना सकते हैं. वी कैन मेक यूज ऑफ ईदर डिक्लेयर कीवर्ड और वी कैन आल्सो यूज लोकल ओपी इज आल्सो इक्वली वर्किंग. सो तो ये तो केवल इसीलिए है, और यहाँ पे नंबर जो है वो हमने शो कर दिया सीधे इको $bin1. तो एक में तो हमने ऐसे किया है जैसे कि हम लोग मानते हैं कि अगर void टाइप फंक्शन है तो इट इज नॉट रिटर्निंग एनी डायरेक्ट वैल्यू. तो अगर कुछ वैल्यू आपने जनरेट करी है तो दैट यू कैन प्रिंट इनसाइड दैट फंक्शन ओनली, सो दैट व्हेन वी आर कमिंग बैक तो वो फंक्शन जब कॉल होगा तो वी आर नॉट राइटिंग एनी वेरिएबल इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो void टाइप फंक्शन है. तो ये कुछ वैसा ही है. और यहाँ पे जो दूसरा है वो डेसिमल का है, डेसिमल कन्वर्जन का. तो यहाँ पे आई बेस इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है कि इनपुट बेस 2 है, मतलब कोई बाइनरी का नंबर है और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं. जब भी आप बेस स्पेसिफाई नहीं करेंगे, चाहे आई बेस हो चाहे ओ बेस हो, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा कि वो डेसिमल बेस है. तो आप चाहें तो एक्सप्लिसिटली यू कैन आल्सो मेंशन ओ बेस इज इक्वल टू 10. ठीक है. So that means the number that we are supplying to this expression is actually a decimal number. ठीक है. और ये उसके बाद रिटर्न कर रहा है. अब ये जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न
DEC1 जो वेरिएबल में हमने होल्ड किया है, तो आप अगर यहाँ पे देखें कि ये इसकी कॉल है DEC $int, हमने इसको सप्लाई किया है और इनसाइड द डेफिनेशन हमने उसको $1 से एक्सेस किया है। जो रिटर्न वैल्यू है जो हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न $DEC1, इस वैल्यू को होल्ड हमने किसी k इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा k इज इक्वल टू जिसमें हम रिटर्न वैल्यू होल्ड करें जैसे नॉर्मली वी डू इन केस ऑफ जावा और C। यहाँ पे रिटर्न वैल्यू वी आर होल्डिंग विद द यूज ऑफ $? So $? is actually the return status of any program that we know कि जो previous हमारी command होती है या जो भी program का return status हम check करना चाहते हैं, so that we check with the help of $? तो यहाँ पे return value of DEC function can be accessed in the main by just using $? तो इससे हम access कर लेंगे। तीसरा इसका जो function है वो और generalize है, जहाँ पे हमने क्या किया है कि O बेस और I बेस में भी वेरिएबल्स ले लिए हैं कि हम ही स्पेसिफाई करेंगे किस बेस से किस बेस में कन्वर्जन, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखें तो आप किसी बेस से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली बेस का मतलब क्या होता है? बेस इज स्पेसिफाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स दैट we can use for representing any number of that number system. For example, when we say decimal number system, so we are having base 10. That means any symbol starting from 0 to 9 can be used to represent any small or any bigger number of decimal number system. अगर हम बाइनरी कहते हैं तो we are confined to only 2 symbols and that's why we are allowed to make use of only 0 and 1. जब हम ऑक्टल कहते हैं तो 0 से लेके 7 तक हो जाता है क्योंकि वो 8 को रिप्रेजेंट करता है, तो 8 यूनिक सिंबल जो है वो 0 से लेके 7 में पूरे हो जाते हैं। अगर आप हेक्साडेसिमल करते हैं so we are having 16 and unfortunately we are not having 16 unique numbers because after 9 when we write 10, so it's a combination of 1 and 0, so it's not unique. So that's why we have adopted the convention of writing capital A, capital B, capital C or alphabet A, B, C for representation of 10, 11, 12 and so on. तो कोई भी नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोई भी नंबर सिस्टम। ये हो सकता है कि अगर हम कहें कि कोई नंबर सिस्टम ऐसा जिसका बेस 3 है तो इसका मतलब है कि अलाउड सिंबल्स आर 0, 1 and 2 ओनली। सो एनी बिगर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड विद बेस 3 बाय जस्ट मेकिंग यूज ऑफ एनी ऑफ दीज 3 सिंबल्स 0, 1 और 2, इन्हीं को यूज करके होगा। तो आप जो भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है वो डिफॉल्ट के लिए है। तो हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस लिखी हैं इस प्रोग्राम में, और दैट आई सपोज नाउ इट्स क्लियर दैट हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दीज डेफिनेशंस। ठीक है, इसमें केवल जो मैंने ये डाला हुआ है लोकल वेरिएबल केवल कंसेप्ट के लिए है, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेफिनेशन, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बिन फंक्शन है जिसको अगर हम वैसे देखें सिंटेक्स वाइज इन कॉन्टेक्स्ट टू द लैंग्वेज लाइक C और C++, तो वी से कि इट्स अ void टाइप फंक्शन, रीजन बीइंग इट इज नॉट रिटर्निंग एनी डायरेक्ट वैल्यू, इट इज अनदर थिंग दैट वी आर इकोइंग सम वैल्यू और सम आउटकम ऑफ दिस फंक्शन, बट दैट इज नॉट द रिटर्न। दूसरा जो DEC है दैट इज अ इंटीजर रिटर्निंग फंक्शन, रीजन बीइंग इट इज रिटर्निंग अ नंबर दैट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। और तीसरा एनी नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम, सो हियर टू इट इज जस्ट लाइक void टाइप। इसका जो यूज है क्योंकि हमने इसमें जो आंसर है वो वहीं पर डिस्प्ले कर दिया है। तो वी कैन सी द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। So decimal to binary conversion, let us first test decimal to binary conversion. And the number that we are giving is 12. Oh, forget about those messages, this is not local, वो अलग है। Then we are getting the answer as 1100। ठीक है, you can see 1100 that is 1248। तो 48 और 8 और 4 12, तो 12 का जो है ये इक्विवेलेंट आ गया। और दोबारा से अगर इसको रन करते हैं and let us suppose we are taking the choice 2 and again we are giving the number in binary, so again giving 1100, so we are getting the binary equivalent of 1100 as 12। ठीक है, और एनी नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम, बिकॉज जो आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इको एंड देन O बेस, तो उसमें हमने वहाँ पे वेरिएबल्स डाल दिए हैं $1, $2, $3। तो आप जो भी वैल्यूज यहाँ पे देंगे वो वहाँ पे पास ऑन हो जाएगी, पोजिशनल वेरिएबल्स के रूप में एक्सेस करना होगा उसको। तो लेट अस गिव द चॉइस 3। तो इनपुट बेस हमारा क्या होना चाहिए, तो लेट अस सपोज आई एम गिविंग
16 एंड देन आउटपुट बेस हमारा क्या होना चाहिए, सो सपोज बाइनरी दे देते हैं 2 और नंबर दे देते हैं सपोज हम दें 5 कैपिटल ए। तो आप इसको चेक करके देख लीजिए कि जो ये 1010 है दैट करस्पॉन्ड्स टू अल्फ़ाबेट ए, बिकॉज ये 1010 10 है कैपिटल ए, और उसके बाद जो वैल्यूज है 101, सो ये 5 है जो ये वाला नंबर है। तो इसका मतलब हम किसी भी नंबर सिस्टम से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर। इनफैक्ट इफ आई आस्क यू टू राइट दिस प्रोग्राम इन जावा और सी, सो दैट विल बी रिक्वायरिंग लॉट्स मेनी एफर्ट्स, बिकॉज व्हेन यू विश टू कन्वर्ट फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि वहाँ पे आप स्विच लगाते हैं। अगर हेक्साडेसिमल है तो आप ये चेक करते हैं कि अगर इसमें रिमाइंडर 10 आया है तो ए प्रिंट हो जाए, रिमाइंडर 11 आया है तो बी प्रिंट हो जाए। सो दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी मेक। और अगर हम कहें कि जनरलाइज फंक्शन लिखिए एनी नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम, तो वो और कम्बरसम हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो 16 18 कुछ भी बेच दे देगा आदमी, तो उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पे दिस कमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। सो आई बिलीव कि फंक्शंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फंक्शंस इसके प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा जो है सिंटैक्स इज डिफरेंट देन व्हाट वी आर बेसिकली यूजिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। और इसके अलावा वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एरे, जहाँ पे वी नीड टू लर्न कि हाउ कैन वी अरेंज n numbers which are stored in RAM in the linear fashion. So we'll discuss that lecture, that topic in the next lecture. But इसमें एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि in Bash we are not having 2-dimensional array, we have only single dimensional, ठीक है। तो हम सिंगल डायमेंशनल को ही इसमें यूज कर पाएंगे, 2-dimensional प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे अभी। आई विश दैट यू टेक सम प्रॉब्लम्स जिसमें one of the problem I have already opened in Word. Is it visible to everybody, or I can just zoom it? एक प्रॉब्लम कीथ नंबर की है। हो सकता है कि when I took your class in first year, so I might have asked you to write this program in C language. तो कीथ नंबर जो है फिबोनाची सीरीज की तरह है, लेकिन अगर फिबोनाची सीरीज में किसी नंबर का अकरेंस उस सीक्वेंस में आ जाए तो वी से दैट इट्स अ कीथ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 197। सो जैसे फिबोनाची में करते हैं कि वी स्टार्ट टेकिंग द सम ऑफ प्रीवियस नंबर्स, तो अगर इसमें 197 3 डिजिट नंबर है, दैट मींस वी हैव टू ऐड द प्रीवियस 3 डिजिट्स एवरी टाइम, whereas in case of Fibonacci series we are always taking the sum of previous two numbers. So here 197, तो 9 और 7 16 और 1 17, तो आप देखें कि यहाँ पे वी आर गेटिंग दिस नंबर एज 17। और उसके बाद देन अगेन प्रीवियस 3 नंबर, तो 17 + 7 + 9, तो 9 + 7 is 16 and 17 33, तो next number is 33. So we keep adding the previous 3 occurrences, तो उसमें ultimately we get the number 197. When the number is generated as part of this sequence, then we say it's a Keith number. So 197 is declared as a Keith number. Why? Because when we do this process, at some point of time we generate that number itself. So this is a Keith number. Similarly, ये जैसे इनमें 14, 19, 28 ये सब Keith numbers हैं, तो I expect कि you should write a program in shell. देखिए, unless until you do programming in shell, you cannot become accustomed of using syntax, because every language has its own syntax. But logically, so every language is same, because once you are having the strong logic of writing the program, so only the thing that matters is the learning of syntax. तो आप केवल उस syntax को पढ़ेंगे और अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो एक तो ये वाला प्रोग्राम लिखिएगा कीथ नंबर का, and I will let somebody to come forward, and I'll announce that name randomly so that he can become live. And since I will waive off this restriction of putting the presentation or giving the presentation from my side only, so in that case you will be allowed to share your screen of laptop so that I can also see whether you are doing the practice or not. So next turn when you come, I will randomly take the name and you have to show the execution of this program, Keith number, and another program is cartons. तो कार्टन्स का प्रोग्राम जो है उसमें कंपनी मैन्युफैक्चरर्स पैकिंग कार्टन्स इन 4 साइज में जो है कार्टन्स हैं,
जिसमें 6 बॉक्स आ सकते हैं, 12 बॉक्स आ सकते हैं, 24 बॉक्स आ सकते हैं और 48 बॉक्स आ सकते हैं. You have to design a program to accept the number of boxes to be packed by the user. आपको जो है, क्योंकि यूजर को केवल बॉक्सेस मिलते हैं, अब उस बॉक्सेस को वो कितने कार्टन्स में एडजस्ट करेगा, ये कुछ करेंसी टाइप का प्रोग्राम है. जैसे हम लोग करेंसी में नहीं होता कि आपसे कहा जाए कि 5,756 रुपए में से कितने नोट जो है वो आप 500 के यूज करेंगे, या जो परमिटेड करेंसी है 2000 की, अब तो 500 और 2000 दो ही नोट आ रहे हैं, तो कितने 2000 के होंगे, कितने उसमें 500 के होंगे, कितने उसमें 100 के होंगे और कितने 50 के होंगे. तो इसका प्रोग्राम जैसे होता है वैसे ये कार्टन्स का है. तो केवल जो है आप ये नोट कर लीजिए कि साइजेस क्या है बॉक्सेस के, जैसे कार्टन्स के. सो 1 कार्टन इज कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग 6 बॉक्सेस, जो छोटा है. उससे बड़ा वाला 12 बॉक्स कर सकता है, फिर 24 बॉक्स कर सकता है, 48 बॉक्स. तो अगर आप देखें तो 6 के मल्टीपल में है, डबल होता गया है हर बार. तो 6 से 12, फिर 12 से 24 और 24 से 48. तो या तो 6 होंगे या 12 होंगे या 24 होंगे या 48 होंगे. तो आप कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे इफ somebody is giving 726, तो इसने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया कि 48 वाले में जो है कितने आए. तो ये कैलकुलेशन यू हैव टू मेक. ठीक है, इसको आपको शो करना पड़ेगा. आई शेयर दिस वर्ड फाइल, इसका मैं पीडीएफ जनरेट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, सो दैट यू कैन राइट द प्रोग्राम. तो आप ये 2 प्रोग्राम लिखिएगा, एंड द अरे कंसेप्ट विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर. यहाँ पे जो अरे कंसेप्ट है बहुत बहुत हैंडी है. हैंडी सेंस में है कि अगर आपको सब स्ट्रिंग रिट्रीव करनी हो तो केवल कमांड्स के फॉर्म में ही सब स्ट्रिंग रिट्रीव हो जाती हैं, जबकि जावा में तो ऐसे फंक्शंस हैं कि, और सी में भी हैं कि जहाँ पे आप सब स्ट्रिंग रिट्रीव कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली है, जिनसे आप किसी को रिट्रीव कर सकते हैं, किसी भी एरे एलिमेंट से, उसके पर्टिकुलर इंडेक्स से पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करते हुए दोज मेनी कैरेक्टर्स यू कैन कट और यू कैन रिट्रीव. ठीक है, from any of the element of array. So we'll discuss this in the next lecture. So here only I am closing my session.